Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss section B of ICSC class 10 biology paper. Although you are least interested in listening the answers today, but I am ready with them. So question number 3 from section B part 1, write the overall chemical reaction for photosynthesis, and the overall reaction is balanced reaction should be there. So 6 carbon dioxide plus 12 water in the presence of sunlight and chlorophyll, 6 oxygen, 6 water, and then glucose C6H12O6 starch. So overall reaction should be there in balanced condition. So this is for 1 mark. Then next is mention any two functions of blood. So any two functions you may write: transport of digested food, transportation of oxygen, of CO2, of excretory material. All these are functions. So you can write any two of them with a little bit explanation because it is of 2 marks. And blood forms a clot whenever there is a cut in a blood vessel. ये भी आप दे सकते हैं. ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सारे यूजेस में से आप कोई से भी दो दे सकते हैं. Differentiate between karyokinesis and cytokinesis. So karyokinesis is the division of nucleus is called karyokinesis, and cytokinesis of division of cytoplasm is called cytokinesis. So excessive use of fertilizers in agricultural field reduces the yield of crop. Justify the statement. So due to excessive use of fertilizer, it acts as a hypertonic solution, resulting in plasmolysis and death of cells and wilting of the plant. Ultimately the plant dies due to excessive use of fertilizer. हम मेन वर्ड इसमें कीवर्ड रहेगा प्लाज्मोलिसिस एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये इसके दोनों कीवर्ड्स रहेंगे. नेक्स्ट इज द फिनोमिना. नेम द फिनोमिना डिपिक्टेड बाय द शूट इन द अबव डायग्राम. ये आपको दिखाया गया है, सनलाइट है और प्लांट उसकी तरफ बेंड हो रहा है. तो द फिनोमिना डिपिक्टेड बाय द शूट इज phototropism. Next is which plant hormone plays an important role in the above movement? So auxins play an important role in the above movement. Next is complete and rewrite. So shoots show positive dash, positive phototropism क्योंकि वो सन की तरफ जाते हैं. एंड रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ जाते हैं. जियो मीन्स अर्थ की तरफ जाते हैं. So coming to question number 4, expand the abbreviation DNA. So DNA is deoxyribonucleic acid. Next is what is active transport? Active transport is the passage of a substance from its lower to the higher concentration through a living cell or a semi-permeable membrane using energy. So, through a living cell membrane using energy in the form of ATP from the cell. आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी लेकर ही हम कर सकते हैं क्योंकि वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है. ये आपका मेन वर्ड रहेगा यहाँ पे. Mention the two pairs of nitrogenous bases which pair with each other with hydrogen bonds. So इसमें दो pairs हमको लिखने हैं. Adenine pair with thymine with 2 hydrogen bonds A double bond T, and guanine pairs with cytosine with 3 hydrogen bonds G triple bond C. ये दोनों pairs आपको दिखाने हैं for 2 marks. Next is state Mendel's law of segregation. So Mendel's law of segregation is when the two members of a pair of factors separate during the formation of gametes, they do not blend but segregate or separate from different gametes. The gametes combine together by random fusion at the time of zygote formation. Second line is optional, but first line you need to write completely. नेक्स्ट ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म. आपने मुझसे जितनी बार पूछा था मैंने आपको बार बार यही कहा था ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा. दो ही डायग्राम बताए थे मैंने, मेलफिगियन कैप्सुलोरिस का, और बाई चांस है कि दोनों ही आ गए हैं. स्पर्म में वैसे तो आपने डायग्राम ठीक बना ही दिया होगा, बट आगे का हमने एक्रोजोम का जो पार्ट है वो भी दिखाना है, और बीच में न्यूक्लियस जो दिखाया है ये भी मेन है आपकी लेबलिंग, क्योंकि 3 मार्क्स में है तो लेबल्ड पार्ट में से आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लेबल्ड पार्ट में कुछ भी छोड़ने का मतलब है इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं. बीच में आपको टेल भी दिखानी है क्योंकि टेल का लैशिंग मूवमेंट भी आप लिख भी सकते हैं थोड़ा सा. ये हमारा एक्सियल फिलामेंट आ जाएगा, ये भी दिखाएंगे. इधर हमारे पास टेल आ गई है. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. Middle piece, you can also write middle piece. This is mitochondria. Acrosome is the front part, releasing an hormone hyaluronidase, ये भी आपने पढ़ा था. और ये हमारा हेड पार्ट हो गया, मिडल पीस हो गया,
एक्शियल फिलामेंट, टेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे लेबल्ड पार्ट आपको दिखाने हैं क्योंकि ये 3 मार्क्स में है, कोई भी मिसिंग आपका मार्क्स कटवा सकता है फिर। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी। Population density is the number of individuals per square kilometer at any given time in a given area. Density. Now, second is name the two surgical methods of population control. Surgical में आप दोनों दे सकते हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल एंड वेसेक्टोमी मेल, दोनों पार्ट्स दे सकते हैं, जिसमें वास्ट डिफरेंस ऑफ और स्पर्म डक्ट का आपने किया ही हुआ है. थर्ड इज मेंशन टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई भी दो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए. इलिटरेसी, ट्रेडिशनल बिलीव्स, मोर्टेलिटी रेट, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, ये सब में से आप कोई भी दो दे सकते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ. फोर्थ पॉइंट, नेम एनी टू रिसोर्सेज विच कम अंडर प्रेशर ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से किस पे प्रेशर आया है? फूड सोर्सेज, वाटर, एनर्जी, फूड अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज, इन सब में से किन्हीं दो को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. फिफ्थ, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है. क्लाइमेट इज चेंजिंग, व्हाई आरंट वी. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम क्यों नहीं बदल रहे? इस क्लाइमेट को सेव करने के लिए हमारा रोल क्या है? Name the climatic phenomena for the increase in Earth's temperature. Obviously, this phenomena is global warming because overall average temperature increase हो रहा है. Mention one reason for this warming, क्यों हो रहा है? Certain gases, especially किनका नाम लिखना है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CH4, accumulating in the atmosphere prevent the escape of heat, and thus global warming is occurring in the atmosphere because greater retention of these gases, solar radiations cannot escape. So that's why overall average temperature is increasing. What measure can be taken to prevent this climatic change? हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी हैं, आप किन्हीं 2 या 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंगली. 3 मार्क्स का है तो आप 2 भी दे सकते हैं क्योंकि टोटल 3 मार्क्स का है. तो ट्री प्लांटेशन का दे सकते हैं, लेस यूज ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का दे सकते हैं, स्विच टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दे सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं. ऐसा सा कोई भी आप यूज इसमें दे सकते हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. या कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है तो वैक्यूलर पोल्यूशन हम कम यूज करें, वही जो मैंने ई व्हीकल्स का बोला आपको, वो भी आप कह सकते हैं, या यूज ही कम करें. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन तो बहुत इजी टर्म है, आपने बहुत बार कवर की हुई है. ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, अब इसमें 1 मार्क का है तो आपको इसके टाइप्स देने की जरूरत नहीं है. अगर होता 2 मार्क्स में तो हम देते स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर, अभी नहीं है. स्टेट एनी टू एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. हम क्या कर सकते हैं टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन? सनकेन स्टोमेटा हमारा मेजर पॉइंट बनता है. द स्टोमेटा में भी सनकेन और कवर्ड बाय हेयर. इसमें हमारी बेस्ट एग्जांपल नीरियम की आती है, अगर आपको याद हो स्पेसिमेन पेपर में भी ये क्वेश्चन सेम आया था. फिर स्टोमेटा, द नंबर ऑफ स्टोमेटा में बी रिड्यूस्ड, वो उसमें भी हमारी इसी की आती है. या फिर साइज इसका रिड्यूस होता है, नैरो लीव्स होते हैं, इनमें कोई सा भी आप दे सकते हैं. 2 आपको देने हैं पॉइंट्स, 2 मार्क्स का है. थर्ड पॉइंट, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन फीटल प्लेसेंटा. ये भी हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में. टू फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा एक्ट एज ए बैरियर एंड डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ जर्म्स फ्रॉम द मदर टू द फीटस. जो चीजें हार्मफुल हैं उनको नहीं जाने देगा और अच्छी सब चीजों को जाने दे रहा है. ये फंक्शन आप मेंशन कर सकते हैं, पूरा डिटेल में लिख सकते हैं. और दूसरा फंक्शन मैंने पर्टिकुलरली मेंशन किया था, प्लेसेंटा एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एज इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो ये हम पूरा डिटेल में दे सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है, दोनों फंक्शन अच्छे से देना है आपने. फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस बीइंग लोकेटेड इन स्क्रॉटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन. में जो स्क्रॉटल सैक है टेस्टिस के अराउंड, वो उसका क्या फंक्शन है, ये हमने देना है. 2 मार्क्स का है. सो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस एट ए टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लेस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. When it is too hot, the skin of the scrotum loosens so that the testes hang down away from the body. When it is cold, the skin contracts in the folded manner and draw the testes closer to the body for warmth. तो दोनों ही केसेस में ये स्पर्म फॉर्मेशन को रुकने नहीं देता, होने देता है इजीली, जिसकी वजह से स्पर्म्स डेड नहीं होते हैं और अच्छे से मेच्योर होते रहते हैं. नेक्स्ट इज ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ मेल्फिगियन कैप्सूल. ये हमने डिस्कस किया ही था, बहुत ही सिंपल है. आई होप आपने कर ही लिया होगा, फिर भी अगर थोड़ा सा देखना है तो कर लेते हैं इसमें भी.
आपको कप शेप बनानी है। यहाँ पर कप शेप में कप शेप में आप नीचे की तरफ दिखाएंगे, यहाँ से आप ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट को आता हुआ दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिए कि ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट आ रहा है नीचे, और नीचे और बीच में जो है हमारे को इफ्रेंट आर्ट्रियोल और एफ्रेंट आर्ट्रियोल दोनों को भी थोड़ा सा दिखाना है। आप थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए कि हाँ जी यहाँ पर कुछ है। ठीक है, इस तरफ हमारे पास इफ्रेंट आर्ट्रियोल आ जाएगा और इस तरफ एफ्रेंट। और इसमें इसके अलावा हाँ ग्लोमेरुलस, इस पार्ट को हम ग्लोमेरुलस कह देंगे। और नीचे हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, ये पार्ट हमारा बोमेंस कैप्सूल आ गया। बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था कि यही डायग्राम आएंगे। जितनी बार भी मेरे से बार बार वीडियो में या कमेंट सेक्शन में पूछा गया, मैंने बार बार इन्हीं दो डायग्राम्स का मेंशन किया था। अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आपका इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा। Now coming to question number 7, what is a reflex action? So reflex action is the automatic or quick immediate action, involuntary action in the body brought about by a stimulus. तो involuntary action है reflex action हमारी body का, जो हम अचानक से करते हैं किसी भी stimulus के response में. So this is reflex action. Now second is renal cortex has a dotted appearance and renal medulla has a striped appearance. Explain. ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बाय चांस मैंने दोनों ही पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि डॉटेड तो बहुत फ्रीक्वेंटली आया बट स्ट्राइप्ड बहुत रेयर आया, आपको पेपर में कम मिलेगा। बट मैंने बाय चांस अपनी वीडियो में दोनों पॉइंट्स मेंशन किए थे। सो बोमेंस कैप्सूल एंड पीसीटी, इनफैक्ट ऑल्सो डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, और बोमेंस कैप्सूल लाई इन द कॉर्टेक्स गिविंग इट अ डॉटेड अपीयरेंस इन द सेक्शनल व्यू। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे लिए स्ट्राइप के लिए क्या आएंगे, हैनलेस लूप एंड कलेक्टिक डक्ट lie in the medulla giving it a striped appearance in sectional view. तो दोनों के लिए स्ट्राइप और डॉट दोनों का जिसने स्टूडेंट ने ठीक दिया होगा उसी को इसके 2 मार्क्स पूरे मिल पाएंगे। आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा ही हुआ है, ऊपर के पार्ट हमारा रीनल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे जिससे डॉटेड अपीयरेंस है, और नीचे जो जाता है पिन शेप हमारा लूप ऑफ हेनले और पीसीटी, उससे स्ट्राइप्ड अपीयरेंस आता है। What are the two functions of cerebellum? कोई भी दो लिख सकते हैं, मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज। तो ये आप दे देंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड यूट्रिकुलस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो सेमी सर्कुलर कैनल में क्या आ जाता है, हमने बहुत बार पढ़ा है, हेल्प इन डायनेमिक बैलेंस ड्यू टू सेंसरी सेल्फ, हमारी डायनेमिक बैलेंस में व्हाइल वी आर मूविंग तो हमारी हेल्प करती हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स, और यूट्रिकुलस हेल्प्स इन स्टैटिक बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी ड्यू टू सेंसरी पैचेस हमारी हेल्प करते हैं, तो वो यूट्रिकुलस के पार्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। डायग्राम बेस्ड में आपको डायग्राम तो दिया ही गया है, वेरीगेटेड लीफ दिखाया गया, वो केप्ट इन डार्क फॉर 24 आवर्स एंड देन प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसने ये भी दिखा दिया, इसके अंदर की पेल येलो कलर आ रहा है और ग्रीन कलर आ रहा है, दोनों कलर्स हमारे को दिखा दिए हैं, यानी कि वेरीगेटेड लीफ का कुछ कलर ग्रीन अभी रह गया है, यानी हमने जो डिस्चार्ज किया है उसकी वजह से थोड़ा सा पार्ट अभी रह गया और थोड़ा आ गया है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट है with respect of photosynthesis is being tested in the above diagram. Which aspect of photosynthesis? So कौन सा एक्सपेक्ट है, मैंने आपको बताया था एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम स्टार्च की प्रेजेंस देख रहे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च यहाँ पर प्रूव करती है किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से। सो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये इसका आपका टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा वाई वाज द प्लांट केप्ट इन डार्क फॉर 24 आवर्स, तो ये तो सीधा सा आंसर है, टू डी स्टार्च द लीफ, यानी लीफ के अंदर के स्टोर्ड फूड को खत्म करने के लिए। सी है आफ्टर द स्टार्च टेस्ट व्हाट विल बी द कलर ऑफ द येलो एंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो येलो पार्ट का क्या होगा, जिसमें से येलो पार्ट मींस जिसका क्लोरोफिल हमने रिमूव कर दिया है, तो येलो पार्ट आफ्टर स्टार्च टेस्ट कौन से कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ब्राउन कलरेशन आ जाएगी, इट मींस वो हमारा रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल वाला पार्ट है जो येलो है, और दूसरा ग्रीन वाला जो है वो स्टार्च टेस्ट के बाद ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो दोनों एस्पेक्ट आपने ध्यान से देने हैं। Now coming to last question, question number 8, define the term mutation. तो म्यूटेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावर वेराइटी ऑफ pea plant, RR is crossed with a pure breeding white flower variety of pea plant.
तो हमें जो डोमिनेंट वाला है उसका लेना है, इट मीन्स आर, आर हमारा कैपिटल वाला रह जाएगा पी प्लांट का, जो जो रेड कलर के लिए आ रहा है, तो आर और आर हमारे पास रेड रेड के लिए आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या लिया इसने, व्हाइट, व्हाइट फ्लावर, व्हाइट के लिए हमारे पास स्मॉल आर, इसी का हम स्मॉल अल्फाबेट लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जब हम इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर आर, देन आर आर, सेम एंड देन सेम, चारों में हमारे पास सेम आ जाएगा। F1 जनरेशन में हम सिंपल इतना ही दिखाएंगे, और F2 जनरेशन में हमारे पास अब आर आर स्प्लिट हो जाएंगे, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, इट मीन्स रेड और व्हाइट स्प्लिट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट केस में देखिए आर आर, सेकेंड में कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, देन कैपिटल एंड स्मॉल एंड देन बोथ स्मॉल। सो इसका जेनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, जेनोटाइपिक रेशियो में आप पूरा लिखेंगे, क्या वर्ड आएगा, रेशियो आपको सबको अच्छे से पता ही है, 1:2:1, एंड फेनोटाइपिक में हम क्या लिखते हैं, फेनोटाइपिक में 3:1। 3 मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्योर रेड एंड 1 इज प्योर व्हाइट। सो इसमें हमारे पास व्हाइट आ जाएगा और ये वाला हमारे पास रेड आएंगे। प्योर रेड तो हमारे पास यहाँ पर हम ले सकते हैं 1, इसमें प्योर रेड रेड आ जाएगा पहला वाला। 3:1 में फेनोटाइपिक है, फेनोटाइपिक मीन्स हमारे जीन्स में है, विजिबल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में है, जीनोटाइप मीन्स जीन्स में है, फेनोटाइप मतलब हमारे को बाहर दिखाई दे रहा है, तो 3:1 हमारा फेनोटाइपिक है और जेनोटाइपिक 1:2:1 रहता है। ये आपने बहुत बार रिपीट किया है योगा चैप्टर में। नाउ थर्ड, लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स रोल अप ऑन ए हॉट सनी डे, एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल रीजंस। आपके कीवर्ड्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लीव्स रोल अप इन समर डे बिकॉज इन हॉट समर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, क्योंकि हॉट सनी डे उसने दिया है, इट मीन सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, ये वर्ड आ सकते हैं। Also during sunny day, rate of absorption of roots is very low and hence to conserve water, plants roll up their leaves. वैसे दिखाएगा कि मेरे पास है ही नहीं, स्ट्रोमेटा है ही नहीं, तो इसीलिए मैं ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने ज्यादा एब्जॉर्प्शन किया ही नहीं है, इसीलिए वो रोल अप हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, दैट अलाउ some particles to go through them and does not allow या prevent other particles to pass through them. तो हमें इसकी एग्जांपल देनी है, नेम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट सेल, वी नो दिस मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और यू कैन आल्सो राइट सेल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल नहीं लिखना। नेक्स्ट इज द डायग्राम शोज डिपिक्ट द ह्यूमन हार्ट इन वन ऑफ इट्स फेजेस। वैसे हमें इसका वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स का साइज है वो थोड़ा और रिड्यूस दिखाना चाहिए था, बट क्योंकि एरो की डायरेक्शन बहुत क्लियर है तो आप आराम से पहचान सकते हैं, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर मींस नीचे वाले चैम्बर्स हमारे सिस्टोल हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट में इसमें कहा गया है गिव अ सूटेबल रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, तो क्या रीजन हो जाएगा इसमें, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड विद जर्क, blood passes through aorta and pulmonary artery through semilunar valves, and next is हमारे पास आ जाएगा distinguish between systole and diastole, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, contraction phase of the heart is known as contraction phase is known as diastole, and systole is contraction। डायस्टॉल में हमारे पास क्या आ जाता है, आपको ये तो याद होगा ना, रिलैक्सेशन। सिस्टॉल में हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, पहले सिस्टॉल लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड, या फेज ऑफ हार्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्शन फेज हम शो करते हैं इज नोन एज सिस्टॉल, एंड डायस्टॉल में रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट, तो ये हमारे पास डायस्टॉल का आ जाएगा। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ सेक्शन बी। आई होप आप सबका पेपर आज का बहुत अच्छा गया होगा और आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में आज पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए होंगे। वैसे भी लास्ट पेपर की टेंशन खत्म होते ही ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा हमारा खत्म हो गया सब कुछ जो कर रहे थे हम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती हैं। 10th हमारी अभी बहुत एलिमेंट्री क्लास है, जिसको हम कहेंगे अभी तक तो हमारे लिए बहुत सुपर होती है कि बहुत बड़ी क्लास में आ गए हैं, बट अब इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। अब 11th-12th में आप जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां आप अच्छा करिएगा, अपने चॉइस को देख कर कीजिएगा, ये नहीं कि फ्रेंड ने लिया है तो मैंने भी यही लेना है, ठीक है। माई बेस्ट विशेज आर फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, good luck।